بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، آج ہم انشاءاللہ فروری کے 10 فروری سے لے کر 20 فروری تک جتنے بھی کرنٹ افیئر MCQs ہیں، نیشنل لیول پہ ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں فار آل دی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن، وہ ہم دیکھیں گے، جس میں ہمارے پاس نیشنل، انٹرنیشنل، اکانومی، سپورٹس، سائنس اینڈ ٹیک، پرسن ان نیوز، سمٹس، کانفرنسز اور اس کے علاوہ جتنے بھی تمام MCQs ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 11 فروری کو اسلامک ریولوشن ڈے جو کہ ایران میں انقلاب آیا تھا، خمینی صاحب جس کے لیڈر تھے وہ اپنی 44th اینیورسری بنا رہے ہیں اسلامک ریولوشنز کے، اور یہ کب آیا تھا؟ یہ 1979 میں ہمارے پاس آیا تھا، کو ہم اسلامک ریولوشن کہتے ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کب کیا جاتا ہے؟ 11 فروری کو۔ جو ایران کا اپنا کیلنڈر ہے، it is usually observed on the 22nd day of the Persian month of بہمان۔ بہمان کے 22ویں دن پر یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ انگریزی سال کا 11 فروری ہمارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیکھتے ہیں ایران کے بارے میں۔ ایران میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ یونیٹری تھیوکریٹک اسلامک ریپبلک ہے، یعنی وہاں ایک مذہبی رہنما کی حکومت ہے۔ یونیٹری کا مطلب ہے which is opposite to the federal، یعنی وہاں وفاقی حکومت نہیں ہے، وہاں یونیٹری ہے۔ اس کے علاوہ ان کا سپریم لیڈر علی خمینی ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ہے، وائس پریزیڈنٹ محمد اکبر ہے، اور اسپیکر آف دی پارلیمنٹ محمد بغیر غلیباف ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس ہمارے پاس ہے غلام حسین محسن جی۔ تو یہ ایران کے بارے میں تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، پیموب جو ہے یہ ایک فائنینشیل سروس انیبلر ہے مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں، پاکستان میں۔ اس نے ابھی PSL ایٹ میکویڈا گلیڈیٹر کو ایز اے جوائن کیا اسپانسرشپ کے لیے HBL PSL فرینچائز میں۔ تو یہ کس کو اسپانسر کر رہی ہے؟ یہ پیموب اسپانسر کر رہی ہے ایکویڈا گلیڈیٹر کو 2023 کے PSL ایٹ میں، اور اس نے جوائن کیا فیبروری 13 کو۔ تو لاہور میں کس کورٹ نے امپوز کیا کمپلیٹ بین آن ٹری کٹنگ ان لاہور؟ تو لاہور میں جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے فرائیڈے کو ایک فیصلہ سنایا جس میں انہوں نے کمپلیٹ بین لگایا درختوں کے کاٹنے پر۔ اور یہ کیوں لگایا ہے؟ یہ اسموک کو روکنے کے لیے لگایا گیا، کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ اسموک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے درختوں کی کٹائی پہ مکمل پابندی لگا دی لاہور ہائی کورٹ نے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس پکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منسٹر فار فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کون ہے ہمارے پاس کرنٹلی؟ تو وہ ہمارے پاس ہے جی رانا تنویر حسین۔ رانا تنویر حسین جو ہے وہ کرنٹلی ہمارے پاس ہے منسٹر فار فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ریڈیو ڈے کب آبزرو کیا جاتا ہے؟ ورلڈ ریڈیو ڈے کب آبزرو کیا جاتا ہے ہمارے پاس؟ تو ہمارے پاس آبزرو کیا جاتا ہے 13 فروری کو۔ اور 2023 کا تھیم کیا ہے ہمارے پاس اس کا؟ تو وہ ہے ریڈیو فار پیس۔ تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ انٹرنیشنلی رینوڈ آرٹسٹ یا محی الدین صاحب کب وفات ہوئے؟ تو وہ یہ ہمارے پاس 13 فروری 2023 کو وفات ہوئے، اور یہ کراچی میں وفات ہوئے۔ اور اس کے علاوہ یہ ضیاء محی الدین صاحب جو ہے نا، وہ آپ نے یوٹیوب پہ شکوہ جواب شکوہ کی ویڈیو دیکھی ہوگی، علامہ اقبال کی، جو اس پہ وہ شاعری ہے اور اس کا جو نریٹر ہے وہ ضیاء محی الدین صاحب ہے، جن کی آواز بہت زیادہ سحر انگیز تھی۔ یہ 13 فروری کراچی میں وفات ہو گئے تھے 2023 کو۔ تو اسی طرح زبردست معلومات کے لیے اسٹار ٹکر کو سبسکرائب کریں۔ لیٹس آگے دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس HBL PSL پاکستان سپر لیگ 2023 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے 13 فروری سے ملتان میں، اور پہلے میچ جو ہے نا وہ لاہور قلندر اور ملتان سلطان کے درمیان ہوگا، جو کہ 13 فروری 2023 کو ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیض احمد فیض صاحب، جس کی 111 برتھ ڈے اینیورسری سیلیبریٹ کی جا رہی ہے 13 فروری کو، جو کہ فیض صاحب جو ہیں یہ ایک سیلیبریٹڈ پوائنٹ ہے، ایک بہت مشہور شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیض احمد فیض کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یہ جو تھے اس کے بعد 1936 میں انگلش لیکچرر بنے MAO کالج جو سر سید نے بنایا تھا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ اس کے علاوہ 1939 میں ان کی کلیکشن آئی پوٹری کی پہلی، جس کا نام ہے نقش فریادی۔ ان کی پہلی کلیکشن تھی جو 1939 میں پبلش ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ ریپریزنٹڈ دی لیبر، انہوں نے مزدوروں کو ریپریزنٹ کیا ایٹ دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جنیوا میں کانفرنس میں۔ 1951 ہی واز arrested under the پاکستان سیفٹی آرڈر ایکٹ اینڈ امپریزن، اور 1951 میں ان کو پاکستان سیفٹی آرڈر ایکٹ کے اندر اریسٹ کیا گیا اور جیل بھیجا گیا۔ اسی دوران انہوں نے جو ہے نا اپنی سیکنڈ کلیکشن
फिक्शन पोट्री की लिखी जिसका नाम है दश्त सबा। दश्त सबा इन्होंने किधर लिखी, ये इन्होंने जेल में लिखी। इसके अलावा जो है ये लेलन पीस प्राइज अवार्ड भी इनको दिया गया है रूस में 1962। इसके अलावा फैज अहमद फैज साहब जो है ना वो फिर आखिर में 20 फरवरी 1984 को लाहौर में वफात पा गए थे और इनकी जो सारी पोट्री है वो हमारे पास पब्लिश है नुस्खे वफा के नाम से इनकी सारी पोट्री जो है ना वो पब्लिश की। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हेल्ड की गई, तो हमारे पास दुबई में 13 फरवरी 2023 को की गई है और इसका वेन्यू दुबई UAE था और इसका थीम जो था 2023 का हमारे पास वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये आप याद रखें कि 2023 गवर्नमेंट समिट का थीम क्या था, तो वो हमारे पास था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसके अलावा ये बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन जो है जो कि बलूचिस्तान में काम कर रही है, इसके अलावा इन्होंने कितने मिलियन रुपए दिए हैं पाकिस्तान को, तो इन्होंने रिसेंटली फरवरी में $3 मिलियन जो कि अप्रोक्सीमेटली 750 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दिए हैं एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप में, कि वहाँ से मिनरल्स और सोना वगैरह निकाल रहे हैं इनके, ये इनको पैसे मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो कि बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने दिए। इसके अलावा कुछ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बारे में देखते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत इन है न्यूज में रिलेटेड टू दी जो आजकल बिल पेश हुआ है असेंबली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत, इसकी वजह से आजकल काफी इन न्यूज में। तो ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पाकिस्तान में जो जितने भी लॉ बनते हैं उसको इस्लामी नजरिए के मुताबिक जो है ना इसको ओवरलुक करती है। तो ये इस्लामिक इशू को देखती है दी गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट और सजेशन देती है पार्लियामेंट को। दिस बॉडी वाज फाउंडेड इन 1962 में बनी अंडर द अयूब खान गवर्नमेंट और जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद अकरम जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। करंट चेयरमैन इसके हैं किबला यासा। ये 20 मेंबर्स पे है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आर्टिकल आप देख सकते हैं 227 से 231 तक। नेक्स्ट हमारे पास है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर जनरल ने विजिट किया पाकिस्तान। तो कब किया, ये हमारे पास 15 फरवरी को इन्होंने विजिट किया और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राफेल मरेनो ग्रोसी। ये इनका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA के। इन्होंने 2 डे विजिट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ये जो एटॉमिक एजेंसी है इसका एग्जीक्यूटिव कौन है, तो हमारे पास है राजा अली रजा अनवर साहब। इसके अलावा करंट चेयरमैन वाबडा कौन है, तो वो हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी साहब। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान रैंक 140 इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022। तो पाकिस्तान का रैंक जो है वो कितना है इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2022 में, तो वो 140 है। 2020 में ये कितना था, 124 था। 2019 में 120 था रिपोर्टेड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टॉप इंडेक्स। और इसमें टॉप पे कौन है, तो हमारे पास डेनमार्क है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की रैंकिंग है 2014 से 2022 तक और ये कितने 180 में से 140वें नंबर पर है करप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है फातिमा पेमान बिकेम फर्स्ट हिजाब वेयरिंग सेनेटर ऑफ विच कंट्री, तो ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। फातिमा पेमान जो है ना ये फर्स्ट हिजाब वेयरिंग सेनेटर बनी ऑस्ट्रेलिया की और ये मुस्लिम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु इज करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो वो हमारे पास है चीफ सेलेक्टर है हारून रशीद। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज ए करंट प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वो हमारे पास है आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और ये 10th प्रेसिडेंट बने ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के। हु इज द प्रेजेंट DGSPR ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो हमारे पास है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हिलाली इम्तियाज मिलिट्री। ये आजकल डायरेक्टर जनरल है SPR के और ये 2022 में न्यू DGSPR बन गए हैं। प्रीवियसली हमारे पास थे जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो कि प्रीवियस थे। नेक्स्ट हमारे पास है ये किसने डोनेट किया है ऑलमोस्ट $2 बिलियन ऑफ टेस्ला शेयर टू चैरिटी, तो एलन मस्क ने फरवरी 2023 में जो है ये $2 बिलियन जो है ना ये टेस्ला के शेयर को जो है चैरिटी में दिया गया है। ये किसने दिया, एलन मस्क ने दिया जो कि टेस्ला का CEO है। इसके अलावा फिच रेटिंग हैज डाउनग्रेडेड पाकिस्तान लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग टू CC नेगेटिव फ्रॉम CC पॉजिटिव। तो फिच ने पाकिस्तान की डिफॉल्ट रेटिंग को जो है ना CC नेगेटिव कर दिया है, किससे, CC CC CCC+ से और इस इदारे का नाम क्या है, फिच रेटिंग।
जो कि फरवरी 2023 में इन्होंने किया है। तो इसी तरह की ज़बरदस्त मालूमात के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब स्टार्टिकर एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो लेट्स आगे देखते हैं कि न्यूजीलैंड डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर पावरफुल साइक्लोन रेक हैवक। जो है ना, ये इसमें भी दो चीज़ें हैं कि ये साइक्लोन कब आया और न्यूजीलैंड में और किस मुल्क में आया। तो साइक्लोन हमारे पास आया न्यूजीलैंड में। कौन सा साइक्लोन था? ये गिब्राइल। इस साइक्लोन का नाम है गिब्राइल और ये 14 फरवरी को आया न्यूजीलैंड में। और इसकी वजह से जो है ना न्यूजीलैंड में काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी लोग जो है ना बेघर हो गए और कुछ लोग जो है ना मरे भी हैं इसमें। और इन्होंने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल पे है। तो इनमें तीन चीज़ें हैं कि ये साइक्लोन का नाम क्या था? गिब्राइल, और ये न्यूजीलैंड में आया और ये 14 फरवरी को शुरू हुआ था। इसके अलावा 2023 का जो अमन है, तो ये मल्टी नेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, जिसको अमन 2023 भी कहते हैं। और इसका नारा क्या है? टुगेदर फॉर पीस, टुगेदर फॉर पीस। और ये कौन सा मल्टी नेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2023 है? तो ये हमारे पास है 8 मल्टी नेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि पाकिस्तान ने भी कंडक्ट कर रही है। किसके साथ कर रही है? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ। और ये कैरिड आउट है फ्रॉम 10 to 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी के दरमियान ये होगा पाकिस्तान। इसके अलावा इजहाक डार ने जो है ना मिनी बजट पेश किया गया है असेंबली में 15 फरवरी को। और इसको इस सप्लीमेंट्री बिल 2023 इज हर्रिडली कॉल्ड सेटिंग ऑफ द हाउस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ। और इन्होंने बहुत जल्दी पेश किया है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 73 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी मिनी बजट होगा या पैसों के रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, यानी मनी बिल्स जितने भी होंगे, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आर्टिकल 73 जो है ना, ये कह रहा है कि जितने भी मिनी बिल हैं वो सब आपको जो है ना असेंबली में पेश करने होंगे जरूरी। उसके बाद फैसला होगा कि ये अप्रूव्ड हैं या नॉट अप्रूव्ड है या चेंजिंग करने हैं। तो ये बिल यानी जितने भी बजट बिल हैं या मिनी बिल्स जितने भी हैं, ये किस आर्टिकल के तहत असेंबली में पेश करने हैं? तो ये आर्टिकल 73 के तहत जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के बिल जमा करने। तो इस मिनी बजट में क्या है? तो इस मिनी बजट में देखते हैं कि मिनी बजट 2023 जो है वो हमारे पास फेडरल मिनिस्टर एंड फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर इजहाक डार ने जो है ना 15 फरवरी को पेश किया नेशनल असेंबली में, प्रोपोजिंग टू इम्पोज न्यू टैक्सेस जो है ना 170 बिलियन न्यू टैक्सेस इम्पोज हैं। और ये क्यों इम्पोज किए हैं? टू मिनिमाइज द फिस्कल डिफिसिट मिनिमाइज करने के लिए। और जो जीएसटी है हमारे पास जर्नल सेल टैक्स को, उसको ज्यादा किया है 17 to 18% एट द जर्नल लेवल। और इसके अलावा इंक्रीज द जर्नल सेल टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम पे जो है ना 17 से 25% इंक्रीज किया है। वाइल द ओवरऑल जो जर्नल सेल टैक्स है वो हमारे पास 70 to 80% कर दिया है, यानी 17 से 18% कर दिया है। और लग्जरी पे 17 से 25 कर दिया गया है। तो ये हमारे पास है ओवरऑल जर्नल सेल टैक्स इनहेंस फॉर 70% to 18% एंड 10% विद होल्डिंग टैक्स विल बी लीव्ड ऑन बिल ऑफ वेडिंग हॉल्स। यानी जो है 10% विद होल्डिंग टैक्स जो है ना शादी हालों पे कर दी गई है। एंड बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो एलोकेशन की गई है तो वो 400 बिलियन रुपए कर दी है। किससे? 360 से, यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है 360 बिलियन से 400 बिलियन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिस्टर सेड द प्राइम मिनिस्टर हैड रिसेंटली अनाउंस्ड द हिस्टोरिक ऑफ Rs 200 बिलियन किसान पैकेज। और 2000 बिलियन जो है ना किसान पैकेज भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, अंडर विच 1000 बिलियन हैड बीन रिलीज सो फार। और 1000 बिलियन जो है ना वो रिलीज कर दिया गया चुका है। इसके अलावा ही एडेड अंडर द यूथ लोन स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 30 बिलियन टू द यूथ ड्यूरिंग द करंट ईयर। और यूथ लोन स्कीम के तहत जो है ना 30 बिलियन जो है ना वो यूथ लोन स्कीम के तहत दिए जाएंगे। इसके अलावा ही सेड द IMF was much concerned over the huge losses such as the power sector was facing losses of around, जो पावर सेक्टर में हमारे पास लॉसेस हैं वो 1400 बिलियन पर ईयर हैं। फ्रॉम 2013 से 18 तक दी सर्कुलर डेट जंप फ्रॉम 1148 बिलियन इन 2018 में था, जो कि अभी 2467 बिलियन पहुंच चुका है। जो हमारे पास सर्कुलर डेट है 2000, तो वो हमारे
हमारे पास रिसेंटली कितना है 2467 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना वो 16 फरवरी को टर्की पहुंचे टू एक्सप्रेस दी सोलिडेरिटी विद द टर्किश पीपल इन दी वेक ऑफ मैसिव अर्थक्वेक। तो ये शहबाज शरीफ साहब 16 फरवरी को टर्की पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान एम्बेसडर टू टर्की डॉक्टर यूसुफ जुनैद, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है टर्की में उनका क्या नाम है, यूसुफ जुनैद साहब। स्पेशल असिस्टेंट भी थे इनके साथ जो पीएम के हैं, वो हमारे पास कौन है, तारिक फातमी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन। एनडीएमए के जो चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। इसके अलावा जो कराची में हमारे पास टेररिस्ट का अटैक हुआ था जिसमें 5 शहीद हो गए थे और 14 इंजर्ड हो गए थे। तो ये वाकया हमारे पास 17 फरवरी को हुआ था कराची पुलिस लाइन पे, जब दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया था जिसमें जो है 2 पुलिस वाले और 1 रेंजर वाले जो था वो शहीद हो चुका था। इसके अलावा 14 जख्मी हो गए। और ये पुलिस हेडक्वार्टर जो शाहराह फैसल पे था उस पे अटैक हुआ है और ये 17 फरवरी को 2023 को हमारे पास ये अटैक हुआ। इसके अलावा करंटली कंट्री लॉस 380 बिलियन टू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इन ऑनगोइंग फिस्कल ईयर। जो ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है हमारे पास, इसमें 380 बिलियन का जो है लॉस हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की चोरी में। जो हमारे पास अभी है ये 380 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन स्टोलन इन द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर 2022-2023 एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द लॉस विल रीच 520 बिलियन नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट ईयर कब तक पहुंच जाएगा, 520 बिलियन। और इस पे जो अदालत ने कानून बनाए हैं थेफ्ट पे, बिजली चोरी पे, तो वो नो बेल है, यानी कोई जमानत नहीं होगी अगर पकड़ा गया कोई बंदा, और नो कम्प्रोमाइज होगा। आज जो है ना पनिशमेंट अंडर दी न्यू लॉ ये है कि नॉन बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। अरेस्ट विदाउट वारंट होगा इसमें, और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, और जो है जेल कब तक हो सकती है, एक मुजरिम को 7 साल तक जेल हो सकती है और इसके अलावा 10 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। तो ये न्यू लॉज है जो पार्लियामेंट हैज अमेंडमेंट द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू इंश्योर सिवियर पनिशमेंट फॉर दी पावर थेफ्ट। पावर थेफ्ट में जो सजाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि 462 एच और 462 आई, 462 जे, 462 के, 462 एल, 462 एम, ये मुख्तलिफ शिकें हैं जिसमें क्लासेस हैं जिसमें इसके क्राइम को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को। इसके अलावा टोन अप मुनीबा स्क्रिप्ट्स पाकिस्तान रिमार्केबल T20 वर्ल्ड कप विन। ये मुनीबा जो है विकेट कीपर बैटर बिकेम द ओनली वुमेन बैटर फ्रॉम द पाकिस्तान टू स्कोर सेंचुरी इन द T20। ये वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन है लड़कियों में जिन्होंने किसी भी वर्ल्ड कप में पहले सेंचुरी कर दी T20 वर्ल्ड कप में, और ये हिस्ट्री में पहली बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वुमेन। तो वो मुनीबा है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी कर दी है। 66 बॉल पे 100 रन बनाए हैं। इसके खिलाफ आयरलैंड के दस्ते ने पार्टिसिपेट किए इन द स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 ड्रिल में, जो कि कंडक्ट हुई सऊदी अरेबिया में 2023 में और फरवरी में। और इसमें PF के दस्ते ने जो दस्ता था ये मुश्तमिल था GF-17 टंडर पे, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हम कहते हैं। इसके अलावा F-16 एयरक्राफ्ट था, और इसके अलावा इसमें और बहुत सारे मुल्कों ने शिरकत की, जिसमें हमारे पास एयरफोर्स फ्रॉम बहरीन थी, ग्रीक थी, जॉर्डन थी, पाकिस्तान था, कतर था, UK था एंड USA था इस इवेंट में, जो कि स्पीयर ऑफ विक्ट्री 2023 था हमारे पास सऊदीया में। इसके अलावा मिस्टर कार्टर 98, मिस्टर कार्टर जो है ना करंटली USA में क्या है, वो दी कंट्री ओल्डेस्ट लिविंग लीडर है इस वक्त। मिस्टर कार्टर कौन थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1977 से 1981 में, और ये अभी करंटली दी कंट्री ओल्डेस्ट लिविंग लीडर्स हैं जो कि 98 साल, और इनको बीमारी है मेलानोमा। इसके अलावा हमारे पास 18 फरवरी को मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान ने क्रॉस दी वर्ल्ड ऑब्जर्व शबी मेराज नाइट। शबी मेराज कब थी, हमारे पास 18 फरवरी की रात को थी। और ये शबी मेराज क्या है, जिसको हम शबी मेराजुन नबी भी कहते हैं, लैलतुल मेराज भी कहते हैं, जो कि 27वीं नाइट ऑफ द होली मंथ ऑफ रजब हम बनाते हैं टू रिकॉल द जर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम मक्का टू जेरूसलम, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बुराक पे पहले मक्का से
यरूशलेम गए और वहाँ जो है ना मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत में नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है ना बुराक पे सवार होकर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए सिदरतुल मुंतहा की तरफ बढ़ते गए। तो ये उसकी याद में शब मेराज बनाई जाती है जो कि 27वीं शब होती है होली मंथ ऑफ रजब के। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो है ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जो कि म्यूनिख जर्मनी में हेल्ड हुई 17 से 19 जनवरी में। उन्होंने वहाँ ये बयान दिया था कि बिलावल वाज टू befriend the whole world on the basis of equality and mutual respect। तो इसमें अभी याद करने की है कि ये जो थी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो जर्मनी में हेल्ड हुई, ये कब हुई? तो ये 2023 के 17 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान हुई। और ये कहाँ पे हुई? ये म्यूनिख जर्मनी में हेल्ड हुई। और ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, जो इसका मकसद क्या था? तो इसके मकसद ये होता है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, तो इनका मकसद है डिबेटिंग दी वर्ल्ड मोस्ट रेलेवेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो आपने देखे होंगे बिलावल ने वहाँ अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के बारे में बात की कि वहाँ तालिबान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए दुनिया को सोचना चाहिए कि वो अभी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की हेल्प करे कि वो काउंटर करे इस टेररिज्म को और इस जो मौजूदा दहशतगर्दी है इनको इतने वसाइल प्रोवाइड किए जाएं कि वो इस दहशतगर्दी पे कंट्रोल कर सके। तो ये 59th म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी MSC जिसको हम बोलते हैं, जो कि म्यूनिच में हुई और ये 17 से 19 फरवरी के दरमियान। इसके अलावा 76 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो है ना, जिसको हम बाफा भी कहते हैं, ये हेल्ड हुआ 20 फरवरी 2023 को। और ये मोस्ट हाई प्रोफाइल इवेंट्स है ऑफ द फिल्म अवार्ड सीजन और विच कल्मिनेट्स विद द ऑस्कर इन मार्च। यानी इस फिल्म अवार्ड्स में जो भी कैंडिडेट विन करता है बेस्ट एक्टर या बेस्ट फीमेल एक्टर, तो उनके 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो ऑस्कर में भी विन करें। और ये यूके में होता है हमारे पास और मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड। इसके अलावा आफ्टर इलेक्शन कमीशन रिफ्यूजल प्रेसिडेंट यूनिलेटरली फिक्सेस अप्रैल 9 फॉर पंजाब एंड के पोल्स। तो ये प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद या उनसे बातचीत के बाद जो है ना खुद ही जो है ना इलेक्शन की डेट दे दी KP और पंजाब में 9 अप्रैल की। और ये इन्होंने किस सेक्शन की दी कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये इन्होंने दी अंडर द सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के, एम्पावरिंग हिम अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। तो इसमें आप ये सेक्शन याद कर लें इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर द सेक्शन 1 जो है ना प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करती है कि वो डेट दे सकता है। इसके अलावा बाइडेन ने एक सीक्रेट विजिट किया यूक्रेन का। तो ये कब किया? तो ये हमारे पास जो था 20 फरवरी 2023 को बाइडेन ने किया। प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे ये मेड a trip to Kyiv organized in strict secrecy promising $500 million in fresh arms deliver, यानी 500 मिलियन नए आर्म्स डिलीवर करेगा और अनवेवरिंग अमेरिकन सपोर्ट ahead of the first anniversary। और ये फर्स्ट एनिवर्सरी पे जो था बाइडेन ने विजिट किया यूक्रेन का। ये फर्स्ट एनिवर्सरी किसकी थी? रशियन इन्वेजन की जो उसने यूक्रेन पे की थी। और ये फर्स्ट विजिट था बाइडेन का टू यूक्रेन सिंस 2008 से। और ड्यूरिंग द ट्रिप बाइडेन प्रॉमिस एन एडिशनल 500 मिलियन जो 468 मिलियन यूरो इन आर्म्स डिलीवर्ड फॉर यूक्रेन। ये विजिट था हमारे पास 20 फरवरी को। सो इसी तरह के जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू।